Hello my dear students, here I am Dhruva Patel in the Aradhya classes at CTM. I am your biology teacher and today we'll start with the chapter number 2, that is the biological classification. So students, before starting of this biological classification, you must know what is the biological and non-biological. So over here I will start with somewhat basic about the biology and living organism, and then we'll move on the biological classification. Fine, okay. So as you know, the whole world is mainly divided into the two types of the things, we can say that is the living things and non-living things. Living and non-living. Now you must have knowledge that we will study living things under the branch of the science, that is the biology, while the study of non-living things can be done under the branch of the science, that is the physics and chemistry. Over here my duty is to teach you a biology. So अभी बेटा हम पूरे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं, सो हाउ दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग वंस. नॉन लिविंग से वो कैसे हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो देर आर सो मैनी कैरेक्टरिस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन श्योरली से दैट living organisms are completely different from the non-living ones, and that is only and only because of their characteristic. वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग वंस से टोटली डिफरेंट होते हैं. सो नाउ विल सी विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो the characteristic of the living organisms are as follows. First one is the growth, then second one is the development, fine, then third one is the metabolism, then fourth one is the reproduction, now next one is the response to the outer environmental condition, response to environmental factor. Fine, these are the main characteristic of the living organisms, and because of that they are distinguished from the non-living ones. बेटा ये बेसिक बात की हमने कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. फाइन इनफ, बट स्टिल ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होने के बावजूद भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो वर्ल्ड है उसमें हमें ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. एज यू नो वेरी वेल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट काइंड. फाइन इनफ. सो ये उसकी कॉमन चीज़ें थी. अभी भी एक कॉमन चीज़ है अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नथिंग बट द लाइफ प्रोसेसेस. बिकॉज द रीज़न इज दैट कि हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हमें क्लासिफिकेशन करना है. सो बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फाइन, नाउ एंड ये सारे कैरेक्टरिस्टिक का बेटा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में स्टडी किया है कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक. यहाँ पे मैंने सिर्फ लिस्ट दिखाया है. या
नाउ वन मोर थिंग बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो लाइफ प्रोसेसेस होती है उसको हम थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे कि विच आर द लाइफ प्रोसेसेस occurs inside the living organisms and how can we classify them on the basis of their characteristic. Fine enough. Okay, so now we'll move on one another topic that is nothing but a life process. नाउ बेटा वन मोर थिंग कि ये आप लोगों ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा है, ये चैप्टर के अंदर ये डेफिनेशन वैसे नहीं आती है, बट यू मस्ट नो कि आप क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बिकॉज द रीजन इज दैट क्लासिफिकेशन इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, सो यू मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक बिफोर अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशन. नाउ आई विल डिफाइन दिस लाइफ प्रोसेसेस. Life processes are nothing but the process occurs inside the living organisms to maintain their life state. Life processes are processes occurs inside the body of living organisms to maintain their लाइफ स्टेट. मीन्स उसको जिंदा रहने के लिए या तो अपना लाइफ स्टेट मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस होती है उसकी बॉडी में, उसको हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस. नाउ विल सी सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस. So they are nothing but, as you know very well, the first one is the digestion. Now, second one is the respiration. Third one is the circulation. Now, excretion. Now, next one is the control and coordination. Then, locomotion and movement. And last one is a reproduction. नाउ बेटा आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें स्टैंडर्ड 10 में पढ़ी है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है और कितने टाइप्स की लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, पर मैं यहाँ पे बेटा इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ना, दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, सो यू मस्ट नो दिस कैरेक्टरिस्टिक. नाउ बेटा माय क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस और नॉट? सबके लिए ये कंफ्यूजिंग है अभी तक. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बेटा कि नीट पास आउट भी कर लिया ना, स्टिल दे डोंट नो इज द रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस और नॉट. मीन्स बेटा मैं यहाँ पे ऐसे बेसिक फंडा पे कंसंट्रेशन करूँगी, और ऐसे हर एक बेसिक फंडा अगर आपके क्लियर होंगे तो आप बहुत इजीली नीट क्रैक कर सकते हैं. फाइन इनफ. इज रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस और नॉट? इज रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस और नॉट? कि नाउ बेटा लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन में ही मैंने लिखा है द प्रोसेस अकर्स इनसाइड द बॉडी टू मेंटेन देयर लाइफ स्टेट, उसी को हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस. एंड एज यू नो द डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट दैट इज द प्रोसेस बाय विच any living organism can produce new living organisms similar to itself on reaching maturity. Fine enough. That is known as the process of the reproduction. But as you know very well, so many organisms are there, they do not reproduce throughout their life.
इट डजेंट मीन दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ। आप सबने बेटा हम सोशली और सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे कपल होते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। इट डजेंट मीन दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ। रिप्रोडक्शन से वो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब वो नहीं है कि वो अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम वो सेंस से देखें, सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ ट्रू लाइफ प्रोसेस। Fine enough. Then the next question is that then what is the importance of the reproduction? As you know beta very well, no one is immortal and the death is a compulsory event and meaningful event. होनी ही चाहिए। Fine enough. So डेथ से जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्ल्ड में से एलिमिनेट हो रहे हैं, उसके प्लेस पे नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐड करने के लिए रिप्रोडक्शन का मेन इंपॉर्टेंस होता है एंड वो होना ही चाहिए बेटा। तो ऐसे हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन का इंडिविजुअल को अपनी लाइफ कंप्लीट करने में कोई रोल नहीं है, या बट बाय द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन द नंबर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी मेंटेन्ड ऑन द अर्थ। फाइन इनफ बेटा, ये ज़रूरी भी है। डन ना? ओके, सो दिस इज समवॉट बेसिक अबाउट दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश्ड है। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए उसमें इतनी प्रोसेसेस होती हैं कि जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ बेटा विल मूव ऑन द अनदर टॉपिक दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। अभी हम क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक पे जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों है? व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई दैट? सो बेटा as you know very well, in a world there is a great diversity and अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हम उसको अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बट क्लासिफिकेशन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। आप अपने घर में भी देखोगे ना तो मम्मी ने साइंस नहीं लिया था, ऐसा नहीं पढ़ा था, बट फिर भी शी नोज वेरी वेल हाउ टू क्लासीफाई द थिंग्स। किचन में जो भी चीज़ें ज़रूरी है ना वो किचन में ही रखती है, वो बाथरूम की चीज़ें बाथरूम में ही होती है, बेडरूम की बेडरूम में ही होती है। दिस इज वन प्रैक्टिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये तो हम एवरीडे लाइफ में पढ़ते ही है, फाइन ना, और करते ही है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें एकदम प्लानिंग से कुछ भी करना है, सो अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी प्लानिंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, देन क्लासिफिकेशन होना ही चाहिए। एंड ये चैप्टर में बेटा हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसी कोई चीज़ों के पर कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। नाउ बेटा वन मोर थिंग कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसको बेटा हम कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। सो फर्स्ट the point which we have to consider while we classify the living organisms, या बेटा ये पहले हम बेस पूरा पढ़ रहे हैं, उसके बाद अभी तो हम इतना इसीलिए बोल रहे हैं, बिफोर सो मैनी ईयर्स बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके पर डिस्कवरी की थी और बहुत कुछ फाउंड आउट किया था, है ना। वो तो लिस्ट आएगा कि ये साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया था, ये साइंटिस्ट ने ये फाउंड आउट किया था, या बट बेस हमें पता होना चाहिए कि किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। सो विच आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक वी हैव टू कंसीडर व्हाइल वी क्लासीफाई दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट वन, टाइप ऑफ द सेल वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन। हमें बेटा सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि किस टाइप का सेल है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 का स्टडी किया है तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 8 सेल जब पढ़ा था तब कि सेल्स आर मेनली ऑफ अ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एंड एज यू नो वेरी वेल द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इज टोटली डिफरेंट। सो हम क्लासिफिकेशन जब करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि उसको डिफरेंट क्लास में डिवाइड करेंगे, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को हमें कंसीडर करना पड़ता है। सो फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ द सेल।
एक अलग क्लास बनाएंगे जिसमें हम प्रोकैरियोट्स को रखेंगे और एक क्लास में हम यूकैरियोट्स को रखेंगे। दोनों को एक साथ में नहीं रख सकते हैं ना, बिकॉज सेल टाइप ही डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, लाइफ मोड सब डिफरेंट होगा। फाइन। देन बेटा वी हैव टू कंसिडर द सेकंड पॉइंट, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें जो भी हम क्लासीफाई कर रहे हैं उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है। आइदर दे आर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक को हम एक क्लास में रखेंगे सेम जितने भी ऑटोट्रॉप्स है, और हेटेरोट्रॉप्स को हम एक अलग क्लास में रखेंगे। देन बेटा हम देखेंगे उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, वो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। देन बेटा उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसे होती है वो भी कंसीडर करेंगे। देन बेटा वन मोर थिंग कि उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो भी हमें कंसीडर करना है। नाउ वन मोर थिंग, अभी हम डेप्थ में जाएंगे बेटा, तो वो भी देखेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्टेडी है कि लोकोमोटरी है, मीन्स एक जगह पे रह रहे हैं कि मूव कर रहे हैं। आप देखो ना एग्जाम्पल्स में, प्लांट्स आर दी स्टेशनरी, एक ही जगह पे रहते हैं, एंड एनिमल्स आर द लोकोमोटरी, मीन्स लोकोमोट होते रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमारी ऑलरेडी जो सिस्टम है उसमें आपको पता है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट ही है। फाइन इनफ ना, तो वैसे हमने दोनों को डिफरेंट क्लास में रखा है बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। देन एनाटॉमी वाइज हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितनी डेवलप्ड हुई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितना डेवलपमेंट हुआ है, सर्कुलेशन किस मोड से हो रहा है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द एनिमल द सर्कुलेशन इनसाइड द बॉडी अकर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज द ब्लड, while in case of the plants the circulation or transportation occurs with the help of the vascular tissues phloem and xylem। तो दोनों को हम अलग रखते हैं। फाइन ना, ओके। देन वन मोर थिंग कि ये उसमें एक्सक्रिएशन कैसे हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कितनी डेवलप हुई है, वो लोकोमोटरी है कि नहीं वो तो मैंने बोला आप लोगों को, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। सो लाइक वाइज ये सारी चीज़ों को कॉन्सेंट्रेशन करके हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना होता है। वन मोर थिंग, उसके क्लासिफिकेशन में हमें दोनों व्यू को देखना है, दैट इज द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। नाउ यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग ये होता है बेटा कि आउटर स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द मॉर्फोलॉजी, वाइल एनाटॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द एनाटॉमी, तो उसकी एनाटॉमी भी देखेंगे। वन मोर थिंग बेटा, वन एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज नथिंग बट द हैबिटेट, कि आइदर दे आर द एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल और एरियल। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे बेटा। सो दिस इज द मेन बेस। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग यू मस्ट नो कि हम ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना उसका मेन बेस क्या है, ये पूरा बेस है। नाउ बेटा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या ट्राई किया था, क्या फाउंड आउट किया था, और उसमें से किसका क्लासिफिकेशन मोस्ट सुटेबल था कि जो हम अभी तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। फाइन इनफ। सो दिस इज होल अबाउट द मेन बेस ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बाय ऑल ऑफ यू।